starting the recording now. ठीक है? So, what work I have given you, you all know now. First thing, first, you will start doing written revision of chapter 3, A to E सारा. और कल जो बच्चे चैप्टर 2 का आंसर नहीं दे पाए थे, आज वो दे देंगे, ठीक है? तो कौन कौन से बच्चे आंसर देना चाहते हैं, मैसेज करो. यशस्वी, जारा, अनु, अनुष्का, 3 बच्चे. और अंशिका भी 4. चलो ठीक है. यशस्वी, चैप्टर 2 से आंसर देना है. ओके, 1 मिनट बाबू. चैप्टर 2 से 1 मिनट रुक जाओ. लेट मी सी द क्वेश्चन. चैप्टर 2 का क्वेश्चन. ओके, explain the formation of soil. Very important question. Explain the formation of soil. The soil farming process continues over a long span of time. It starts developing in layers one over the other. These layers are called horizons. From bottom to top, the lowest horizon is called bedrock. Then comes the horizon of weathered rock. It is followed by subsoil and topsoil. The topmost horizon is rich in humus. Very nice. Excellent. Excellent. Okay. Formation of soil. Excellent. Okay. Soil types. Who will answer E3? Let me see. After Yashashvi. Zara? Unmute. You answer E3. Major soil types found in India. Excellent. Excellent. Zara, I can see a huge development or growth in your performance. From previous classes when I taught you, from that time I can see a huge growth. Excellent. Excellent, Zara. Okay. Who is next? Let me see. After Zara, Anushka. Anushka, unmute. Yes, ma'am. Okay, Babu, you will answer E4. Describe the journey of a river from its source to its mouth. Anushka, ready? Ready for this answer? ओके, हेजिटेशन हो रहा है, इसका मतलब रेडी नहीं है. ठीक है, इस आंसर को हम बाद में जब भी रिवीजन करेंगे हम लोग कंप्लीटली, तो E3 एंड E4 ये क्वेश्चन जरूर रहेगा. ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. और D4 भी, हाउ इज डेल्टा फॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए सबको. ठीक है. सो आई विल आस्क. मैंने ये आंसर नहीं लिखा है. क्यों बाबू? क्यों अनुष्का? मुझे नहीं मिला था मैम. मैं अपने गांव से क्लास करती थी ना, तो मैम वहाँ पे नेटवर्क इशू था. अनुष्का वेट बाबू. चैप्टर 2 जैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे क्वेश्चन आंसर ग्रुप में शेयर हुआ है. ये तो एक्सक्यूज हो रहा है बाबू. 2 दिन पहले का स्नैप पे भी जाके चेक करोगे, उस पे भी शेयर किया गया है. स्नैप भी नहीं देखियो. व्हाट्स अच्छा ठीक है, ठीक है. तो स्नैप अब ठीक है, मोबाइल अब ठीक है. हाँ तो बस, हाँ तो बाबू वेरी गुड. पिछले 2-3 दिन का जाके चेक करो, चैप्टर 2 का तुमको वहां पे मिल जाएगा. ठीक है. देखो, सैटरडे को ओरल एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब फ्राइडे को रिटन प्रैक्टिस हुआ है. तो फ्राइडे को या थर्सडे को ग्रुप में आ गया होगा. ठीक है. तो इस 2 दिन का अपना चेक कर लो स्नैप होमवर्क, उस पर तुमको आंसर मिल जाएगा. क्लियर? चलो ठीक है, अभी हम पूछ लेते हैं, लेकिन वो आंसर याद होना चाहिए. ठीक है. चलो अभी ओके.
Okay, you answer E5. Yes, ma'am. What is the conservation of soil important? Suggests three different ways of soil conservation. Mm-hmm. Removal of the top layer of soil is called soil erosion. We must understand that soil erosion is a serious problem affecting land all over the world. Mm-hmm. It certain areas the soil erosion has become menace which can cause in the crop yield such as plantation of trees, selective agriculture practices like crop rotations and multiple cropping method, Mm-hmm. development and management pressure land. ओके ओके, अब अनुष्का ये बताओ, रीडिंग हो रहा था या याद करके सुनाई हो? पूरे अच्छे से याद है? Yes, ma'am. अच्छा चलो, एक एक क्वेश्चन का और आंसर दो. हाउ इज डेल्टा फॉर्म्ड? हाँ बोलो, हाउ इज डेल्टा फॉर्म्ड? Yes, ma'am. Before meeting the sea, the river became large and the river became and स्लगिश large and sluggish स्लगिश and get स्लगिश divided into several. Ma'am, can you repeat? स्लगिश स्लगिश मतलब वेरी स्लो, वेरी स्लो. Sluggish and get divided into several distinct trees. It now comes into its old stage. The river thus de- deposits silt, sand, and sediments over a large area near its mouth. Uh, this this large deposition helps in the formation of delta. Okay, nice, nice. Okay, after Anushansha, who wants to answer? Let me see. अनुष्का का हो क्या? उसके बाद और कौन है? अनुष्का के बाद ऋषभ कुमार. ऋषभ अनम्यूट. ऋषभ, ऋषभ. Yes, Rishabh. Yes, Rishabh. You will answer D3. हाँ. I want to answer E4. Okay, ठीक है. बोलो. बोलो. At the journey of the river from coast to its mouth. Mm-hmm. In its earliest stage, the river is controlled to one stream boundary. At the rate of the river is maximum due to down-cutting work of river that from the striking effect of the like I-shaped and a V-shaped valley. Mm-hmm. As the river enters into the plain, here the volume of the water it is now came the stage of maturity. Here the volume of the water increase and the slope of the land decrease, resulting in a slow down the speed of river. Mm-hmm. During this stage, the river is said to be slow down and hinder. Before meeting the sea, the river becomes the large and the sluggish. Before meeting the sea, the river becomes the large and sluggish and get divided into the several tributaries. Mm-hmm. It is now came in its course. The river has deposited their silt, sand, and sediment over a large area near its mouth. Mm-hmm. It is now came in its old stage. This large deposition helps in the formation of delta. Okay, excellent. Excellent, Rishabh. Very nice. This answer must be memorized by every student. This is very important question. Can I answer E4? Who? Ma'am, Zara. ज़ारा, अब E3 का काम करो बाबू. E3 पे अब काम करना है. टुमारो आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम E3. ठीक है? तुमको चांस मिल चुका है. जिसको चांस नहीं मिला था उनको चांस दिया जा रहा है. आज हम लोग E3 का अब कर रहे हैं. रूपाली, डिडंट यू गेट चांस यस्टरडे? रूपाली, अनम्यूट. रूपाली को चांस मिला था? मिल गया था चांस? ओके, ठीक है. Yes, ma'am. चलो ठीक है. तो फिर जिसको चांस नहीं मिला था सिर्फ उनके लिए था. ठीक है? नाउ यू ऑल फोकस ऑन चैप्टर 3. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से याद रखना है. और एक D5 भी. D5
वाई इज ह्यूमस फॉर्म्ड मोर रैपिडली इन ह्यूमिड एरियाज? इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो. 2 क्वेश्चन डी का, दो क्वेश्चन ई का. ठीक है, दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो ज़ारा, व्हाट आर यू राइटिंग हियर? लेट मी सी. ओके, चैप्टर 3 ज़ारा वांट टू शेयर. ज़ारा, पिछला चैप्टर तुम्हारा शेयर किए थे ना, इस बार देखते हैं किसी और को चांस देंगे. पिछला तुम्हारा चैप्टर शेयर हुआ था. रूपाली, वो देखना पड़ेगा बाबू, देखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. अनुष्का आनंद, ओके. अनुष्का, अपनी कॉपी दिखाओ. वो देख के उसके बाद हम शेयर करेंगे, उसको देखना पड़ेगा. ठीक है, आज अनुष्का आनंद भेजेगी. आई विल चेक हर कॉपी एंड अगर उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं मिला देन आई विल शेयर हर कॉपी. ठीक है, एक एक दिन अलग अलग बच्चे की कॉपी शेयर कर देंगे हम. हालांकि 2-3 बच्चों का अगर हम शेयर करें तो कहीं मिस्टेक का चांस हमको नहीं लगता है, जैसे कृषराज, दिव्य प्रकाश, यशस्वी. ये 3 अगर कॉपी भेजते तो लगता है कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे से लिखे हैं. ठीक है, लेकिन ठीक है, बाकी लोग को भी चांस मिलना चाहिए. इसलिए आज कौन भेजेगा? आज अनुष्का को चांस दे देते हैं. ठीक है, देखते हैं फिर. अगर उसकी कॉपी सही रही तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी 3 में से किसी एक को कहेंगे. ओके, चैप्टर 2 मन्नत का शेयर हुआ था. ओके, चैप्टर 2 मन्नत का शेयर हुआ था. अच्छा जा रहा, ठीक है, तो फिर अपनी कॉपी दिखाओ. अनम्यूट एंड शो मी योर कॉपी ऑन स्क्रीन. ज़ारा की कॉपी, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है बाबू? तुम्हारा आंसर्स बिल्कुल सही है, उसको जो हम लोग ओरल ये इसमें किए वो पूरा करेक्ट है. चलो ठीक है, तो फिर आज तुम भेज दो, देख लेंगे. ओके ठीक है, तो आज ज़ारा भेज देगी. क्लास एंड चैप्टर नंबर इस नाम से पीडीएफ सेव होगा. ठीक है, ठीक है ना? ओके, चलो ठीक है. और क्लास का सी बहुत लंबा मत डालना. सिंपल चैप्टर नंबर एंड फिर क्लास, यानी 6 नंबर्स में लिखना, तो फिर लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा. सिंपल 7C, नहीं 7C नहीं, 7 तो C डालने की जरूरत नहीं है. सिंपल 7 तो समझ में आ जाएगा क्लास 7 है. ठीक है, ओके. चलो अब क्या करना है, अब हम लोग को चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें. ओके ठीक है, चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी सी. ओके, व्हाट इज लावा? D3 सिंपल है, एकदम सिंपल है. कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है एग्जाम में, वैसा ही ये क्वेश्चन है, व्हाट इज लावा. एंड व्हाई आर इग्नियस रॉक्स कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स? ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो श्योरली आता है, एक क्वेश्चन जो श्योरली आता है वो है E1, डिफरेंशिएट बिटवीन द P वेव्स एंड S वेव. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, एक और क्वेश्चन E3, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? Name any 2 fossil fuels and specify their importance. ये E1 and E3 क्वेश्चन. ठीक है, खासकर E1 श्योरली एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. E1 E3 एंड ऊपर में दरअसल ऊपर का छोटा छोटा आंसर है. ठीक है, तो उसमें से तो सारा रिवाइज कर ही लेना है. इनफैक्ट हम लोग रिवीजन हर एक क्वेश्चन का करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं लेकिन रिवीजन हम लोग हर एक क्वेश्चन का करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेट करते हो तो कुछ भी दिया जा सकता है ना, टीचर के मूड पे डिपेंड करेगा ना, है ना. इसीलिए रिवीजन हर एक क्वेश्चन का करना है. ओके चलो, तो फिर काम स्टार्ट करो सारे बच्चे.
दिव्य प्रकाश अनम्यूट. दिव्य प्रकाश, तुम्हारी आवाज नहीं आई बाबू. हाँ अब ठीक है, ठीक है. कल ओरल एक्टिविटी में चांस मिल गया था. कल का मतलब नॉट संडे, कल का मतलब लास्ट वर्किंग डे. क्लियर? ओके ठीक है. तो ओरल एक्टिविटी में चांस मिल गया था. ठीक है. चैप्टर 3 कर रहे हो? ओके ठीक है, ठीक है. ओके दिव्य, वन वर्क आई विल गिव यू आफ्टर द क्लास. ठीक है. वन वर्क रिलेटेड टू द क्लास. The students who are not active in WhatsApp group and our class session, not active at all. ठीक है. हम लोग को उसका थोड़ा सा देखना होगा. 7-8 स्टूडेंट्स आर देयर. आई नो, क्योंकि उनकी कॉपी जो होती है तो उनका जो एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो सब दिख जाता है, कौन एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं दे रहा है. ठीक है, वो दिख जाता है. बट स्टिल वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है. ओके ओके चलो ठीक है. फोकस ऑन योर वर्क. जिसको भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम होगी वो आज क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. हम लोग जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर जरूर शेयर होगा ग्रुप में. एंड मेंटली बी रेडी. मे बी नेक्स्ट वीक योर क्लासेस विल रीओपन. स्कूल विल रीओपन फॉर यू बिकॉज आज से 9th-10th की क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना. तो मैक्सिमम चांस है मंडे से तुम लोग की भी क्लासेस शुरू होगी. तो ऑब्वियस है डिवाइड होगा रोल नंबर, है ना. रोल नंबर डिवाइड होगा. तो अल्टरनेट डेज करके रोल नंबर्स को, आधा रोल नंबर को फर्स्ट डे बुलाया जाएगा, आधा को नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा, है ना. सो अपनी ड्रेसेस एकदम रेडी रखनी है, आयरन वायरन करके क्लीन करके, है ना. स्मार्ट बन के स्कूल आना है. ठीक है. वो लेकिन मैसेज आएगा तब, कंफर्म जब मैसेज आएगा तब. लेकिन अभी चांस दिख रहा है कि तुम लोग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से, नेक्स्ट मंडे से. ठीक है. ओके. ओके डी सबका लिखना हो गया होगा ना, है ना. चलो तो कुछ बच्चों से डी पूछ लेते हैं बिकॉज तुम लोग लिख रहे हो. आई एम जस्ट वेटिंग हियर. ठीक. तो डी जिसका पूरा हो गया है और जो अभी नहीं बोला है वैसे बच्चे फट से मैसेज करो. तो 2 कंडीशंस आ देयर. डी पूरा लिख लियो कॉपी में. सेकंड, अभी बोल क्वेश्चन का आंसर नहीं दियो, वैसे बच्चे मैसेज करो. देन आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑफ डी. ओके. किसी का मैसेज भी नहीं आया अभी तक. किसी का डी पूरा नहीं हुआ. Each and every answers you have to revise properly and in detail. हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे अच्छे से. ओके चलो कुछ कुछ बच्चों से हम एक दो छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. हनी अनम्यूट. Yes, ma'am. ओके. यू आंसर. इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. Ma'am, diamond. ओके नाइस. Can you answer how are metamorphic rocks formed? Ma'am, rocks which are originally sedimentary in nature. Mhm. Rocks which are originally sedimentary in nature change in the character appearance due to the pressure. That's why metamorphic rocks are formed. Pressure and heat also. heat भी है क्या? Yes, ma'am. है ना. ओके. सर
Okay, primary rocks. Which one is primary rock? मैम igneous rock. Igneous है ना. अग्नि से igneous है, याद रखो. अग्नि से igneous है. तो एकदम स्टार्ट में जब अर्थ में बिल्कुल हर जगह बिल्कुल अर्थ क्या थी, मॉल्टेन फॉर्म में, केवल ऊपर का लेयर हार्ड हुआ था, तो अंदर का लावा फूटता था, बाहर निकलता था, है ना. तो अग्नि से इग्नियस रॉक है, दैट इज प्राइमरी रॉक. फिर प्राइमरी रॉक जब धीरे धीरे कटी छटी टूट फूट हुआ, तो कौन से रॉक में कन्वर्ट हुआ, कौन सा रॉक बना, हनी बताओ. इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हुआ ना. सेडिमेंट तो सबसे लास्ट में जो ओशन के नीचे में वो बालू वालू वो जमा होने लगा, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेकेंड स्टेज में कौन सा रॉक बना. अच्छा चलो ठीक है, रिटर्न पे फोकस करो, ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है. ओके. इग्नियस रॉक्स तो स्टार्ट का हो ही गया बाबू. अगर वो इनसाइड जमा, ठीक है, या आउटसाइड जमा, उस पे हम लोग नाम दे रहे हैं ना, है ना. इग्नियस रॉक्स जब टूट फूट के कन्वर्ट हुआ, वो किस में फिर कन्वर्ट हुआ, कौन सी रॉक बनी उसके बाद. वो सीरियल में तीनों रॉक है, तो उसको हम लोग अगर वैसे देखें तो समझना एकदम आसान है. प्राइमरी रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, उसमें इनसाइड जो है वो इंट्रूसिव, इनसाइड से इंट्रूसिव, याद रखना इजी रहेगा. इनसाइड इंट्रूसिव एंड आउटसाइड जो है वो एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव ओके. एक्सटीरियर जो होता है बाहरी, उससे एक्सट्रूसिव है. तो प्राइमरी रॉक्स हम लोग देख रहे हैं. फिर देखेंगे कैरिड अवे बाय रिवर. अच्छा, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ बनती है, ओशन बेड में, क्योंकि रिवर उसको बहा के ओशन में जमा कर रही है ना. तो ओशन बेड्स में सेडिमेंट्री रॉक्स जमा हो रही है, वहां पे प्रेशर से, वो पानी के प्रेशर से, और जमीन के नीचे जब है वो बाद में गर्मी से भी, उसके वजह से वो हार्ड हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना. तो ये हम लोग देखेंगे, कल पूछेंगे ये डिटेल में, हम कल पूछेंगे, ठीक है. Okay, what is, who has given me message, ma'am please repeat C1 of chapter 3. Okay, C1. Okay, it is C1, it is diamond, hardest substance. ठीक है, हमारी धरती पे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है. ओके. कृषराज, कृषराज अनम्यूट Yes, ma'am. on your camera. Yes, ma'am. Okay, what do you want to say. मैम आपने बोला था, मैम किसी बच्चे ने बोला था C1 रिपीट करने के लिए, मैम उसी का Okay, you wanted to answer that. अच्छा ठीक है, ठीक है. एकदम अच्छे से आज रिवीजन करना है, बिकॉज आई विल आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन टुमारो. ओके. Okay, honey has a problem. Okay, let me ask, unmute you, let me first. Yes honey, what's your problem, tell me. मैम डायमंड को हार्डेस्ट रॉक क्यों कहते हैं और किसी चीज को हार्डेस्ट रॉक क्यों नहीं कहते हैं. कहते नहीं है, वो एक्चुअली में है हार्ड, ठीक है, वो एक्चुअली में हार्ड है. हीरा जो है ना वो बहुत हार्ड है, उससे ज्यादा हार्ड कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है अर्थ पे. तो मशीन्स की जो कटिंग होती है ना, मशीन्स पे जो जैसे मान लो आयरन को पिघलाए, उसका शीट बना, उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन होता है ना, उसका अलग अलग शेप होता है ना. तो उस आयरन को काटने के लिए, ठीक है, या दूसरे हार्ड सब्सटेंस को काटने के लिए हीरा ही यूज किया जाता है. मशीन्स में हीरा फिट रहता है नुकीला करके, और वो चाकू की तरह उसको काटता है.
ठीक है, तो कहते नहीं है, वो एक्चुअली में है हार्ड, स्टोन्स से भी हार्ड है वो। ठीक है, जैसे पत्थर में ग्रेनाइट है ना, सबसे हार्ड पत्थर ग्रेनाइट है, बाकी पत्थर उसके कंपैरिजन में कम हार्ड है, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो वैसे ही डायमंड जो है वो बाकी सारे सब्सटेंस से सबसे ज़्यादा हार्ड है। ओके, हम लोग के पेंसिल में ब्लैक ब्लैक जो है वो क्या है? पेंसिल में मिडिल पार्ट जो है ब्लैकिश कलर का, जिससे हम लोग लिखते हैं, वो क्या है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट बोल रहे हैं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। वो सॉफ्टेस्ट है, सबसे सॉफ्ट है। देखती हो जरा सा पेंसिल छीलते हो, ज्यादा छिल गया तो वो टूट जाता है ना फट से, है ना? तो वो सॉफ्टेस्ट है। ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रीजी नेचर इन द, ये देखो इसी पैरा के पेज 20 पे लास्ट में है, इसको हम लोग सर्कल किए हुए हैं। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रीजी इन नेचर। ग्रीजी यानी चिकना, ग्रीज की तरह चिकना है ना पेंसिल, है ना? तो वो क्या है? सॉफ्टेस्ट है, सबसे सॉफ्ट है। बाबू ब्लैक गोल्ड बोलते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं क्योंकि वो जो पेट्रोलियम निकलता है जब क्रूड ऑयल रहता है तो उसका कलर एकदम ब्लैक रहता है ना, गाढ़ा रहता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत है ना? किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ब्लैक इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी से गाड़ी चलती है, मशीन चलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है। तो उस इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ऑयल पेट्रोलियम को। ठीक है, ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर दिस, व्हाट इज ब्लैक गोल्ड? लेट मी सी। गौरव पूछ रहे हैं, मैं समटाइम्स कोल इज कॉल्ड ब्लैक ब्लैक गोल्ड। अच्छा, कोल के लिए, ठीक है, कोल भी एक तरह से वही एनर्जी के लिए यूज होता है बाबू। एनर्जी के लिए किसी भी कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी जो थी पहले तो कोल को बर्न करके ही बनती थी ना। डैम्स तो बाद में कंट्रीज जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, पैसे लगाने लगी, तब बने ना। उसके पहले कोल्स को जला के ही पानी को भाप में कन्वर्ट करते थे, उससे टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, है ना? तो इसीलिए उसको, क्योंकि ब्लैक है लेकिन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए, इसलिए उसको ब्लैक कोल को ब्लैक गोल्ड कह रहे हैं। उसी तरह पेट्रोलियम्स भी जो है, ठीक है, वो भी वैसे इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के लिए। Okay. Any other question? Balu yellow gold, petroleum black gold. Okay, yellow gold. ठीक है। गोल्ड का मतलब बहुत कीमती चीज है ना, जो भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड कहने का मतलब ये नहीं कि वो उसका गहना बनाने वाला गोल्ड, गोल्ड का मतलब बहुत कीमती चीज। मैम मीन सी लेवल किसको बाबू? मैम मीन सी लेवल। सी लेवल, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, वाटर वाटर जो है वो, वाटर का जो सी का जो लेवल है, कहीं पे वो बहुत गहरा है ना, गहराई अलग अलग है, तो मीन एक एवरेज सी लेवल जो है उसको कहते हैं। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज।
ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में पेज 23 में समथिंग टू डू, इसमें टू जो है, ग्रुप द फॉलोइंग रॉक्स अंडर द 3 हेडिंग इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये 3 पार्ट में अंडरलाइन करके 3 हेडिंग में डाल के ये जो अलग अलग हैं स्टोन्स उसको उसमें डालना है, ठीक है। तो ये भी कर लो कॉपी में, ये भी इंटरेस्टिंग है। और ये सारा का सारा हम लोग को आंसर कहाँ मिल जाएगा, और मार्क किए हुए भी हम लोग, ये सारा का सारा हम लोग को स्टोन, तीनों टाइप का जो स्टोन्स है, रॉक्स है, यानी पेज 19, हाँ पेज 19 में हम लोग को मैक्सिमम सारा मिल जाएगा, है ना। पेज 19 पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सारा का सारा हम लोग को रॉक्स का टाइप मिल जाएगा। देखो लास्ट जो पैरा है इसमें कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट इज इग्नियस बट चेंज इनटू मेटामॉर्फिक एज नाइस, limestone is a sedimentary rock but changes into metamorphic as marble, ठीक है। Similarly, shale may be transformed by great pressure into slate. Shale convert हो रहा है slate में। Okay, what is the next question? Let me see. किसका क्वेश्चन है? गौरव का। मैम, if Tibet will be an country in future, then China will share any border with India or not? नहीं, तब नहीं। अगर अगर तिब्बत आज़ाद कंट्री बन जाए तो फिर चाइना और इंडिया के बीच में वो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर नहीं होगा। हाँ, लेकिन इधर में तो फिर हमारा अक्साई चीन वाला जो एरिया है जो पाकिस्तान गिफ्ट किया हुआ है चाइना को, वो वाला एरिया भी है उस साइड में, ठीक है। मैम पर ईस्ट इंडिया तो टच करेगा ना? हाँ, वही वही कह रहे हैं, क्योंकि अक्साई चीन जो है जो इंडिया का पार्ट है, हमारे हमारे मैप में हमारा एरिया दिखता है लेकिन वो एक्चुअली चीन के कब्जा में है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया का पार्ट। मैम मैं ईस्ट इंडिया में बोल रही हूँ। ईस्ट इंडिया में? अच्छा, ईस्ट इंडिया में उसका लोकेशन देखना पड़ेगा बाबू, क्या लोकेशन है उस तरह से ईस्ट में टच करेगा। उसका एक्चुअल हम लोग को मैप लेके बैठे तो फिर हम लोग उसको देख सकते हैं। चेक करके बताओ, चेक करो। ओके, मन्नत को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मन्नत? लेट मी आस्क। अनम्यूट मन्नत, अनम्यूट। यस मैम। हाँ बाबू, क्या प्रॉब्लम? मैम आप पेज नंबर आप बताई थी मैम, यही कॉपी में लिखा मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला बाबू? ओ अच्छा, अभी जो क्वेश्चन बताए पेज 23 समथिंग टू डू का सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट। ओके मैम। यहाँ पे देखो जितना, हाँ देखो जितना जितना स्टोन्स है ना, रॉक्स है, उसका पिक्चर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट, मार्बल, कोल, क्ले,
नाइस, स्लेट, लाइमस्टोन, सबका पिक्चर दिया हुआ है। तो उसके ये ऊपर में वही नाम सब है, सिर्फ ये डालना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का है, सेडिमेंट्री का है या मेटामॉर्फिक का है। क्लियर? तो ये 3 हेड में इस स्टोन इसको बांटना है। मैम पेज 159 पे मैप है इंडिया का। 159, चलो देखते हैं। 159, ओके ठीक है। ओके, तो तुम जम्मू कश्मीर का पार्ट का नहीं पूछ रहे हो, इधर के पार्ट का पूछ रहे हो, है ना? अरुणाचल प्रदेश और ये, तो यहाँ पे भी हम लोग का बाबू तिब्बत वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है? तिब्बत बॉल जैसा एक एरिया, वो वाला पार्ट है।